Okay, चलिए. So let me start today's topic. So welcome all. Welcome to Ganitagya Academy. So today we are discussing Laplace transform. This is our part number 3. Two already we have discussed. And yes, so let me start. Myself, Professor Ritesh, and let me start today's topic. चलिए. Okay. Okay. So yesterday I have given you one question. So question was, last question we have left was cos under root t divided by under root t. We have to find out Laplace of this function. Okay. So for this, what we will do, we will write the, let me solve it very soon. So the series of cos theta, is given as 1 minus theta square upon 2 factorial plus theta raised to 4 upon 4 factorial minus theta raised to 6 upon 6 factorial and so on. This is infinite series. Okay, so cos theta हो गया ये. So what will be cos theta upon theta? That will be 1 upon theta minus it will be theta upon 2 factorial plus theta cube upon 4 factorial. Understood now? Minus theta raised to 5 upon 6 factorial, like this. Okay, divided by theta. So now put theta is equal to under root t. Now put theta is equal to under root t. तो cos under root t divided by under root t कितना हो गया? 1 upon theta means t raised to minus 1 by 2. Am I clear? Then minus theta is under root t, so t raised to 1 by 2 upon 2 factorial. Very much clear. Now plus theta cube, so t raised to 3 by 2 upon 4 factorial. Then minus t raised to 5 by 2 upon 6 factorial and so on. ठीक है? Understood? चलिए. So now we have to take Laplace of cos under root t upon under root t. So इसका लाप्लास निकालने के लिए क्या करेंगे? We have to use formula. Which formula? Laplace of t raised to n हमने लिखा है गामा n plus 1 upon s raised to n plus 1. ठीक है? So Laplace of t raised to minus 1 upon 2 minus Laplace of t raised to 1 upon 2 factorial plus Laplace of t raised to 3 upon 2 upon 4 factorial minus Laplace of t raised to 5 upon 2 upon 6 factorial and so on. ठीक है? चलिए, सभी ने लिखा? ओके. सो लाप्लास ऑफ cos अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी इज इक्वल टू, इसका लाप्लास क्या लिखेंगे? गामा माइनस 1 by 2 plus 1 डिवाइड बाय s रेस टू माइनस 1 by 2 plus 1. ठीक है ना? देन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा गामा 1 by 2 plus 1 डिवाइड बाय s रेस टू 1 by 2 plus 1. ठीक है? प्लस गामा 3 by 2 plus 1 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल s रेस टू 3 by 2 plus 1 एंड माइनस करके सो ऑन. ठीक है? सो लेट मी राइट इट ऑल्सो. वेट अ मिनट. यस. सो इट इज माइनस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल गामा 5 by 2 plus 1 अपॉन s रेस टू 5 by 2 plus 1. ठीक है? लिखा सभी ने? सो नाउ लाप्लास ऑफ cos अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी इज इक्वल टू, ठीक है? सो ये हो जाएगा गामा 1 by 2. दिस इज गामा 1 by 2 अपॉन s रेस टू 1 by 2. ठीक है? दिस वेरी मच क्लियर. ठीक है? देन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये है गामा n प्लस 1. सो गामा n प्लस 1 को हमने क्या लिखा था? n गामा n. सो ये हो गया 1 by 2 गामा 1 by 2 डिवाइड बाय s रेस टू 3 by 2 प्लस इसको लिखेंगे 3 by 2 इंटू फिर से 3 by 2 लिख दिया 1 by 2 plus 1. सो 1 by 2 गामा 1 by 2 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड s रेस टू 5 by 2. ठीक है? माइनस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे 5 by 2 इंटू
3/2 इंटू 1/2 इंटू गामा 1/2 डिवाइड बाय s रेस टू 7/2 एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, सभी साथ में लिख पा रहे हैं ना? ठीक है, सो लाप्लास ऑफ cos अंडर रूट टी अपॉन रूट टी इज इक्वल टू गामा 1/2 कितना हो गया, रूट पाई। सो मैं अंडर रूट पाई को तो मैंने सब में से कॉमन ले लिया, गामा 1/2 को सब में से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या बचा 1/s रेस टू 1/2। ठीक है ना, ये हो गया s रेस टू 1/2। अच्छा, क्यों ना रूट पाई को भी कॉमन ले लें, मीन्स अंडर रूट पाई अपॉन एस को कॉमन लें। सो लेट वी टेक कॉमन अंडर रूट गामा 1/2 इज अंडर रूट पाई। सो अंडर रूट पाई अपॉन एस को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 1। फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट इज 1 देन माइनस। अब गामा 1/2 भी गया, इसको लिख देंगे 1/2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 इंटू 1 अपॉन क्या बचेगा, इट विल बी एस ओनली। ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या है 1/4 फैक्टोरियल। सो 1/4 फैक्टोरियल इंटू 3/4 इंटू एस रेस टू 3/2। 5/2 में से 1/2 गया, कितना बचेगा, ओ सॉरी एस स्क्वायर। ठीक है, इट विल बी 4 स्क्वायर देन माइनस 1/6 इंटू 5 इंटू 3 दैट इज 15 है ना, 5 इंटू 3। सो 5 इंटू 3 देन 1 and divide by 2 cube that is 8 into s raised to 7/2 minus 1 means it will be 7/2 minus 1। so कितना रहेगा ये s cube है ना, 3 plus 1/2। ठीक है, परफेक्ट। सर वहाँ 6 फैक्टोरियल आएगा ना? 6 factorial, yes, it is factorial, very nice, it is factorial, perfect। 1/6 फैक्टोरियल। yes, 6 factorial, perfect, करेक्ट है। ठीक है, चलिए, वेरी नाइस। सो नेक्स्ट इज अंडर रूट पाई अपॉन एस, और ये हो गया 1 देन माइनस, इसको हमने लिख दिया 1/2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4, 2 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 4s। ठीक है, प्लस चलिए अब ये 3 है ना, ये 3 है और ये 4 फैक्टोरियल है। सो 3 अपॉन इसको लिख दिया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड इसको लिखा 1/4s। सो ये 3 से 3 कैंसिल है ना, ये 2 इंटू 1 को हम लिख देंगे 2 फैक्टोरियल एंड ये हो जाएगा 4s स्क्वायर। चलिए बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ, माइनस 1/6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 फैक्टोरियल हो गया, 5 इंटू 3 ऊपर है और ये 8s क्यूब है। ठीक है, सो 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। चलिए राइट इट डाउन। सो इट विल बी अंडर रूट पाई अपॉन एस, ये रहा 1, ये रहा 1/4s प्लस, देखिए इसको हमने लिखा 2 इंटू 1 को लिख दिया मैंने 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 2 इंटू 1 को लिख दिया 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 इसको लिखा 4s स्क्वायर। ठीक है, अंडरस्टूड। देन अगेन माइनस, ये रहा अच्छा ठीक है, सो वेट अ मिनट, यस परफेक्ट। सो ये रहा 6, ये रहा 4, ये रहा 2, ये रहा 8। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हमने इसको लिखा 1/, ये 6 को लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 8 64, तो इसको हमने लिख दिया 4s क्यूब एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, सो ये हो गया अंडर रूट पाई अपॉन एस, ये रहा 1 देन माइनस 1/4s देन प्लस 1/2 फैक्टोरियल
1/4s स्क्वायर माइनस 1/3 फैक्टोरियल एंड 1/4s क्यूब एंड प्लस सो ऑन। ठीक है, ये किस किस फंक्शन का सीरीज हो गया? ये सीरीज हो गया, ध्यान दीजिए, ई रेस टू एक्स होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ई रेस टू माइनस एक्स होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये और ये मैच कर रहा है, देखिए 1 है, एक्स की जगह 1/4s है, यस 1/4s है, ये 1/4s स्क्वायर है 2 फैक्टोरियल भी है, 1/4s क्यूब है और 3 फैक्टोरियल भी है। ठीक है, तो आदित्य इसको कहना है राइट, लाप्लास ऑफ cos अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन एस, और ये हो गया ई रेस टू माइनस 1/4s। दिस इज नथिंग बट दी लाप्लास ऑफ cos अंडर रूट टी अपॉन रूट टी। प्लीज राइट इट डाउन। ओके, सो लेट मी क्लियर द कैनवास। परफेक्ट, ओके चलिए, सो द क्वेश्चन इज फाइंड द लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी वेयर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी अपॉन टाउ, है ना, ये रोटेशन है टाउ का, टी अपॉन टाउ। व्हेन टी जो है वो 0 से टाउ के बीच में है तब फंक्शन की वैल्यू है टी अपॉन टाउ, जब जो टी है टाउ से बड़ा है तो उसका वैल्यू है 1। ओके, प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन। सो नाउ चलिए, सो आपको पता है एफ ऑफ एस को हम कैसे लिखते हैं? द फॉर्मूला इज 0 to infinite f of t, wait a minute, yes, so it is 0 to t 0 to infinite f of t e raised to minus st and dt। ठीक है, तो अब देखिए इसको लिमिट को क्या देके रखा है, 0 से टाउ के बीच में देके रखा है, सो आई विल ब्रेक लिमिट इनटू 0 से टाउ, और उस टाइम पे f of t क्या है, t अपॉन टाउ e raised to minus st dt प्लस टाउ टू इनफाइनाइट क्या है फंक्शन 1 एंड ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। ठीक है, ओके चलिए, सो दिस इज एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, ठीक है चलिए, सो इसमें हम क्या लगाना पड़ेगा, बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला, यस, एंड दिस विल बी डायरेक्टली, सो इसको हमने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, सो एफ ऑफ एस विल बी 1 plus 2. So let me find second first because it is easy. So second is tau to infinite e raised to minus st dt. So इसका लाप्लास या इंटीग्रेशन e raised to minus st अपॉन माइनस s लिमिट tau to infinite। ठीक है, so क्या हो गया 2, that is minus 1 upon s e raised to minus infinite minus e raised to minus s tau। ठीक है, सो माइनस 1 अपॉन एस, ठीक है, और ई रेस टू माइनस इन्फाइनाइट तो 0 माइनस ई रेस टू माइनस एस टाउ, सो इट विल बी सेकेंड विल बी ई रेस टू माइनस एस टाउ अपॉन एस, ई रेस टू माइनस एस टाउ अपॉन एस। तो ये तो हो गया हमारा सेकेंड वाले का। नाउ फर्स्ट वाला, so first write it down, then we will go to first one। okay, so this is second one। अब first one क्या था इसमें, first one is 1 upon tau e raised to क्या रहेगा 0 to tau then e raised to minus st into t and dt। ठीक है, so यहाँ पर हमने क्या करा, जस्ट हमको सिंप्लीफाई करने के लिए, मीन्स ज्यादा हमको टफ ना पड़े, हमने टाउ का मल्टीप्लाई कर दिया, सो टाउ इंटू आई मीन फर्स्ट। ठीक है, सो हम यूवी फॉर्मूला लगाएंगे, सो यूवी dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन u डैश देन इंटीग्रेशन v dx और इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, फॉर्मूला सभी को आता है यूवी वाला। सो देखिए
सो फर्स्ट फंक्शन सेम, फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे अब, लेट अस से टी, क्यों टी को लेंगे, क्योंकि यहाँ पर टी का डिफरेंशिएशन विल बी 1, सो फर्स्ट फंक्शन टी ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, इसका इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू टाउ, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 0 टू टाउ, किसका, इसका डिफरेंशिएशन, टी का डिफरेंशिएशन इज 1 इनटू इसका इंटीग्रेशन कितना है ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस एंड डी टी, ठीक है, कंप्लीटेड। अब क्या करेंगे, टाउ इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एस, ठीक है, अपर लिमिट टाउ ई रेस टू माइनस एस टाउ। जनरली लोग मिस्टेक क्या करते हैं, केवल इसमें ही लिमिट पुट करते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, दोनों में लिमिट पुट करना पड़ेगी, ठीक है, ऐसा मिस्टेक करते हैं पब्लिक। सो टाउ इंटू ई रेस टू माइनस एस टाउ माइनस 0 इंटू समथिंग, तो 0, ठीक है। नाउ दिस इज माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट कितना 0 टू टाउ, ठीक है। सो टाउ इंटू आई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एस टाउ ई रेस टू माइनस एस टाउ, सॉरी इट इज टाउ, ठीक है, देन माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर ई रेस टू अपर लिमिट माइनस एस टाउ माइनस ई रेस टू 0, डायरेक्ट 1 लिख दो, ठीक है, ये हो गया टाउ इंटू, टाउ से डिवाइड कर दीजिए एंड वो सेकंड को ऐड कर दीजिए, सो व्हाट इज टोटल इंटीग्रल, सो एफ ऑफ एस इज, सो आई कितना रहेगा माइनस 1 अपॉन एस, टाउ से टाउ कैंसल, ई रेस टू माइनस एस टाउ, ठीक है, देन वेट यस, सो माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर, सो ई रेस टू माइनस एस टाउ अपॉन टाउ माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का आंसर क्या लिखा रहा था हमने, ई रेस टू माइनस एस टाउ अपॉन एस, ई रेस टू माइनस एस टाउ अपॉन एस, सही है ना, चलिए प्लीज राइट इट डाउन, ओके, सो डायरेक्टली वी कैन से दिस वन एंड दिस वन विल कैंसल, ठीक है ना, तो बचा क्या केवल ये दोनों, तो इसमें 1 अपॉन एस स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, टेक 1 अपॉन एस स्क्वायर कॉमन, सो क्या बचा, सो इट इज 1 माइनस ई रेस टू माइनस एस टाउ अपॉन टाउ, ठीक है, परफेक्ट। सो आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ एक मिस्टेक हुआ है, यस, बताइए क्या मिस्टेक हुआ, ये जो टाउ हमने यहाँ पर डिवाइड इससे तो कर दिया, लेकिन इससे नहीं करा, इससे भी कर दिया, इससे नहीं करा, दिस इज टाउ, so this is 1 upon tau, yes, so 1 upon tau s square and it is 1 minus e raised to minus s tau, ठीक है, परफेक्ट, चलिए लिखिए, ओके चलिए, सो दिस इज डन। नाउ इसका सेकंड पार्ट है, द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज एफ ऑफ टी, इसका लाप्लास निकालना है, दिस फंक्शन इज गिवन बाय 1 t and 0, 1 is given when t is in between 0 and 1, t दे के रखा है जब t है 1 and 2 के बीच में, एंड 0 दे के रखा है जब t है ग्रेटर देन 2, ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाप्लास, f of s is equal to 0 to infinite e raised to minus st into f of t dt, ठीक है, so you will write, yes, you will break it into 0 to 1, then 1 to 2 and then 2 to infinite, ठीक है, so 0 to 1 function is 1, so f of t के जगह हम क्या लिख देंगे 1 e raised to minus st dt, ठीक है, 1 to 2 के बीच में क्या है, it is t, so e raised to minus st dt,
and then 2 to infinite it is 0, so there is no need. ठीक है, so similar type ही question है. Can I solve it? So e raised to minus st upon minus s, लिमिट क्या है 0 to 1, then plus again uv rule लगेगा, t is the first function, e raised to minus st upon minus s, फिर लिमिट पुट करो दोनों में, माइनस होल इंटीग्रेशन 1 t का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस, यहाँ मत लिमिट पुट कर देना, अगेन वी विल इंटीग्रेट एंड देन वी विल पुट द लिमिट. तो यहां से f ऑफ s आया माइनस 1 अपॉन s e रेज टू माइनस s माइनस e रेज टू 0 इज 1, ओके, देन माइनस 1 अपॉन s 1 इंटू e रेज टू माइनस s माइनस 0, ठीक है, देन माइनस माइनस प्लस, इट इज e रेज टू माइनस एस टी अपॉन, फिर से माइनस आ जाएगा, सो लेट मी राइट, वेट, माइनस माइनस एस स्क्वायर, वो लिमिट क्या 0 to 1, ठीक है ना, एक बार चेक कर लो, सॉरी 1 to 2, कहां पर गया ये 1 to 2 था, दिस लिमिट इज 1 to 2, वेट अ मिनट, सॉरी, yes, so this limit तो 1 to 2 है ना, yes, this is 1 to 2 and this is 1 to 2, ठीक है, very nice. So 1 up minus 1 upon s e raised to minus s minus 1, then minus 1 upon s upper limit 2 into e raised to minus 2s, then minus 1 into e raised to minus s, ठीक है ना, then माइनस माइनस प्लस हो गया, देन माइनस e raised to minus st upon s square and limit 1 to 2, ठीक है, चलिए please write it down. So now you can say f of s is equal to e raised to minus s minus minus plus 1 upon s, then minus 2 e raised to minus 2s upon s minus plus e raised to minus s upon s, then minus 1 upon s square upper limit e raised to minus 2s minus e raised to minus s, ठीक है, so f of s will be e raised to minus s upon s plus 1 upon s, ठीक है, अब ये हो जाएगा, दिस इज, वेट, यस, ठीक है ना, so why to write this, as we can see e raised to minus s upon s and e raised to minus s upon plus s, ये कैंसिल हो रहा है, so there is no need to write it here, ठीक है, so I will write 1 upon s, ये हो गया, then it is minus 2 e raised to minus 2s upon s, then minus e raised to minus 2s upon s square, then minus minus plus e raised to minus s upon s square, ओके, परफेक्ट, चलिए लिख ही लीजिए, दिस इज आवर आंसर, है ना, जस्ट मेक इट, ब्लॉक इट हियर, ओके, वेरी नाइस, चलिए, सो द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 3, द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो गई थी हमारी, एक तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी हो गई, एक फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गई, एंड दिस इज प्रॉपर्टी 3, है ना, वो साइन एच ए टी तो जस्ट इट इज डिडक्शन, डिड्यूस, वी कैन डिड्यूस फ्रॉम द e रेज टू एटी एंड e रेज टू माइनस एटी, तो उसको हम प्रॉपर्टी में काउंट 3 और 4 कर सकते हैं, बट द मेन इज दिस वन. नेक्स्ट इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ठीक है, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, चलिए, सो इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, ये तो हर बार लिख लेते हैं, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे,
तो उसका लाप्लास रहेगा 1/a f of s/a. This is property. Let me try to prove it, but this is the property we use. ठीक है, 1/a s f of s/a. चलिए, so let me try to prove it. So f of s किसका लाप्लास है? f of t का. So what will the formula? 0 to infinite e raised to minus st f of t and dt. ये फॉर्मूला है f of s का. ठीक है, चलिए, तो अब अगर हमने f of t की जगह f of at लिख दिया, so let us say f of s क्या हो गया? f1s. So let us say f1s is the Laplace of 0 to infinite e raised to minus st f of at dt. ठीक है, so just put at is equal to न्यू वेरिएबल z. ठीक है, so ये लिमिट किसकी है? t की. चलिए, सो a का मल्टीप्लाई करने पे कुछ लिमिट चेंज होगा क्या? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 इंटू ए इज 0 एंड a इंटू इन्फानाइट अगेन इन्फानाइट e रेस टू माइनस एस टी जाए क्या लिख दें? z अपॉन a. ठीक है, f ऑफ a t f ऑफ z dt. सो a dt इज इक्वल टू dz. तो dt कितना हो गया? dz अपॉन a. ठीक है, तो इसको हमने 1/a बाहर निकाल लिया. इसको हमने क्या लिखा? 0 टू इन्फानाइट e रेस टू माइनस s अपॉन a इंटू z f ऑफ z dz. तो इसको कंपेयर किया इस फॉर्मूले से. सो f ऑफ s e रेस टू माइनस एस टी f ऑफ t dt. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0 टू इन्फानाइट e रेस टू माइनस एस u f of u du. t can be replaced by any variable. so तो यहां पर अगर z लिख देंगे तो भी वही आएगा, लेकिन डिफरेंस क्या है? s की जगह s अपॉन है. सो आई विल राइट इट 1/a और s की जगह क्या हो गया? s अपॉन है. ठीक है, एंड दिस इज f1s. सो f1s इज 1/a f of s अपॉन है. चलिए, please write it down and let me know when done. So this is the property of that is called change of scale. ठीक है, scaling property. चलिए, so let me clear this. Yes, okay. So इस प्रॉपर्टी पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वेरी सिंपल. आप मुझे बताइए लाप्लास ऑफ साइन टी क्या होगा? ओमेगा की जगह 1 हो गया, सो 1/s² + 1. ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके इफ मैं साइन at का लाप्लास निकालूंगा तो क्या होगा? वो 1/a एंड f ऑफ s अपॉन ए, जहां पर f ऑफ s क्या है? ये f ऑफ s है. तो ये हो जाएगा 1/a एंड 1/s अपॉन a का स्क्वायर + 1. है ना? आपको तो पता है ये क्या आना चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस आई एम सॉल्विंग दिस. 1/s² अपॉन a² + 1. सो क्या हो जाएगा? a अपॉन s² + a². जस्ट हाउ टू यूज प्रॉपर्टी, उसके लिए क्वेश्चन कराया. ठीक है, चलिए, प्लीज राइट इट डाउन. ओके, सो ओनली फॉर टू शो हाउ टू यूज दिस प्रॉपर्टी हमने ये लिया एग्जांपल. अदरवाइज साइन at का तो a अपॉन s² + a² भी नो. ठीक है, चलिए, वेरी नाइस. सभी सब कुछ यहां तक क्लियर है. लेट वी राइट नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव. ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा. ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इसी बेसिस पे सॉल्व होगा. पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है ना, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास इन डिफरेंशियल इक्वेशन, वो केवल इसी बेसिस पे सॉल्व होगा. तो ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स. ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन. देन लिखिए, इफ लाप्लास ऑफ f ऑफ t कितना? f ऑफ s. अगर लाप्लास ऑफ f ऑफ t है f ऑफ s, सो व्हाट विल बी लाप्लास ऑफ f डैश t क्या रहेगा? ठीक है, वो हम निकालते हैं. चलिए, f ऑफ s का फॉर्मूला क्या है? 0 टू इन्फानाइट
ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ सो इसका लाप्लास क्या मान रहे हैं हम, F1s मान लें, लेट अस से F1s। ठीक है, सो F1s क्या रहेगा, 0 to infinite एंड ई रेस टू माइनस एस टी एंड एफ ऑफ टी की जगह हो जाएगा एफ डैश टी एंड देन डी टी। ठीक है, यस। और फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगा लीजिए, फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगा लीजिए, देन ई रेस टू माइनस एस टी, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी विल बी एफ डैश टी का इंटीग्रेशन एफ टी, लिमिट क्या 0 टू इन्फाइनाइट माइनस 0 टू इन्फाइनाइट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस एस ई रेस टू माइनस एस टी एंड इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी। समझे क्या, यूवी फॉर्मूला लगा दिया है सिंपल। तो ये हो गया F1s, दैट इज लाप्लास ऑफ एफ डैश टी। F1s को हमने लिख दिया लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू, अब देखिए इसका अपर लिमिट ई रेस टू माइनस इन्फानाइट इंटू एफ ऑफ इन्फानाइट, जो भी हो, ई रेस टू माइनस इन्फानाइट 0, 0 इंटू समथिंग 0 माइनस ई रेस टू 0, तो ई रेस टू 0 एंड एफ ऑफ 0, ई रेस टू 0 एंड देन एफ ऑफ 0। ठीक है, देन माइनस माइनस प्लस एस इंटू 0 टू इन्फानाइट ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो ये हो गया लाप्लास ऑफ एफ डैश टी इज इक्वल टू, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस एफ ऑफ 0, ये हो गया एस इंटू, इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ एस। परफेक्ट, सो दिस इज नथिंग बट डेरिवेशन ऑफ कि व्हाट विल बी द लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, तो क्या रहेगा एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। चलिए प्लीज राइट इट डाउन। चलिए, है ना, इसी इलेक्ट्रिकल के लिए तो ये मतलब पूरा एप्लीकेशन, जो भी जिसको भी लाप्लास से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है उसके लिए ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए, सो नाउ सेकंड वन क्या हुआ, इफ लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी, तो वो होता है, ध्यान रखिए फॉर्मूले के टर्म में इसको याद रखिए, एस स्क्वायर, जो हमने मेथड यूज करा उसी से करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, नो वरी। सो एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस इंटू एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश 0। ओके, इफ इट इज लाप्लास ऑफ एफ ट्रिपल डैश टी, 3 बार डिफरेंशिएशन, तो ये होगा एस क्यूब एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ 0 माइनस एस इंटू एफ डैश 0 माइनस एफ डबल डैश 0। ठीक है, नाउ if it is Laplace of 4 time differentiation, it will be s to the power 4 f of s minus s cube f of 0 minus s square f dash 0 minus s into f double dash 0। so ध्यान रखिए, ऐसे अगर हम Laplace of n time differentiation function of time इसको हम करते हैं तो ये होता है s रेस टू n, देखो ध्यान दो, ये 4 है तो ये भी 4, s रेस टू n f ऑफ s माइनस s रेस टू n माइनस 1, क्या हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस s रेस टू n माइनस 2, ये हो जाएगा f n माइनस 1 f डैश 0, सॉरी f डैश 0 है ना, माइनस एस एन माइनस 3 एफ डबल डैश 0। यस, परफेक्ट। कहां तक, माइनस एफ एन, देखिए ये 4 था तो ये एफ 0 एफ डैश, वेट अ मिनट, कुछ यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, एस की पावर 4 देन एस क्यूब देन एफ 0 एफ डैश 0 एफ डबल डैश 0 एंड माइनस एफ ट्रिपल डैश 0 वी मिस्ड। ठीक है, तो ये जब 4 था
तो 3 तक गया, जब ये 3 था तो 2 तक गया, जब 2 था तो 1 तक गया, तो ये n-1 0 तक जाएगा। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। दिस इज नथिंग बट व्हेन फंक्शन इज डिफरेंशिएटेड n टाइम, उसका लाप्लास कैसे निकालेंगे। अंडरस्टूड, प्लीज राइट इट डाउन। चलिए, सो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। फंक्शन एफ एक बार डिफरेंशिएटेड है तो वो होगा एस एफ एस माइनस एफ जीरो। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएटेड है तो वो होगा एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ठीक है, इफ इट इज 3 टाइम डिफरेंशिएटेड it will be s cube fs minus s square f of 0 minus s f dash 0 minus f डबल डैश 0। ठीक है, वैसे करते करते अगर n टाइम डिफरेंशिएटेड है तो वो होगा s की पावर n f of s माइनस s रेस टू n माइनस 1 f of 0 माइनस s रेस टू n माइनस 2 f डैश 0, कब तक, एफ एन माइनस वन 0। अंडरस्टूड, प्लीज राइट इट डाउन नाउ। ओके, वेरी नाइस। सो हमने क्या क्या देख लिया, प्रॉपर्टी, ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव देख लिया। अब देखिए ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। नेक्स्ट क्या लिखिए, ट्रांसफॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल का मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कितना है, एफ ऑफ एस, सो लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी, लेकिन हमने क्या लिखी है, लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू टी डी टी। इसका लाप्लास कैसे निकलेगा बताइए, चलिए ट्राई करिए। चलिए लेट मी ट्राई। चलिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए एक बात को कि प्रॉपर्टी ये कहती है कि लाप्लास ऑफ 0 टू टी, याद रखना लिमिट क्या लिखा है मैंने, 0 टू टी, सो 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी का लाप्लास जो होगा वो होगा एफ ऑफ एस अपॉन एस। प्लीज रिमेंबर दिस इज द प्रॉपर्टी। अगेन यू कैन डिराइव, जो हम लास्ट टाइम एफ डैश टी का निकाला है वैसे ही है ना, कोई बड़ा बात नहीं है उसके अंदर, यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, चलिए, सो लाप्लास ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी इज एफ ऑफ एस अपॉन एस। ठीक है, लेकिन हमने क्या पूछा है क्वेश्चन में, माइनस इनफाइनाइट टू टी, तो हम क्या लिखेंगे, लाप्लास माइनस इनफाइनाइट टू 0 एफ ऑफ टी डी टी प्लस 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी। सो क्या हो गया, अब ध्यान दीजिए, ये क्या बन गया, अब ये बन गया माइनस इनफाइनाइट टू 0, माइनस इनफाइनाइट टू 0, ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट टर्म हो गई, तो इसको हमने नाम दे दिया एफ ऑफ 0। एक कांस्टेंट टर्म हो गई, उसको बोल सकते हैं कांस्टेंट के भी, है ना। मोर इजी मेथड इज लेट अस से इट इज कांस्टेंट ओनली, प्लस लाप्लास ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, सो लाप्लास ऑफ के विल बी के अपॉन एस, प्लस इसका लाप्लास हो जाएगा एफ ऑफ एस अपॉन एस, और ये हो गया टोटल लाप्लास ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, आप जब नेटवर्क पढ़ते हो तो इसमें काम आएगा। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन, दिस इज लाप्लास ऑफ इंटीग्रल। ओके, सो नेगेटिव टाइम कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट कि हमने जैसे मोबाइल की बैटरी 20% थी पहले से और स्विच टी इक्वल टू 0 पे चालू किया, तो उसके पहले का टाइम को नेगेटिव टाइम बोल देंगे, है ना। वो एक्चुअली में नेगेटिव टाइम नहीं है, बट वो विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। चलिए फटाफट तेजी से, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेस टू एन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेस टू एन। ठीक है, सो लाप्लास ऑफ टी, लाप्लास ऑफ
लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी कितना था, एफ ऑफ एस। सो अगर हमने उसमें टी रेस टू एन का मल्टीप्लाई कर दिया, फंक्शन में टी रेस टू एन का मल्टीप्लाई कर दिया, सो प्लीज रिमेंबर दी this property, it will be minus 1 raised to n and n time differentiation of f of s. ओके, सो अगर आप कह सकते हैं कि अगर t का मल्टीप्लाई करा f ऑफ t में तो वो हो जाएगा -1 d बाई डी एस एफ ऑफ एस। अगर 2 बार मल्टीप्लाई करा सो टी स्क्वायर -1 स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर डी एस स्क्वायर एफ ऑफ एस। अगर 3 बार करा सो टी क्यूब एफ ऑफ टी इट विल बी -1 क्यूब डी क्यूब अपॉन डी एस क्यूब एफ ऑफ एस। ठीक है, दिस इज द पैटर्न, प्लीज राइट इट डाउन। सो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी रेस टू एन। ठीक है, वैसे ही एक होता है डिवीजन बाय टी, डिवीजन बाय टी। एक बार मैं केवल टी रेस टू एन नहीं बोला, टी बोला। ठीक है, सो एक बार टी करके फिर 2 बार, ऐसा मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला इसके लिए नहीं है। ठीक है, सो अगर देखिए, अगर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी, बहुत ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी विल बी एस टू इन्फानाइट। कहां से कहां तक, एस टू इन्फानाइट एफ ऑफ एस डी एस। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। सो देखिए, अब इसको आपने लिख दिया f1s। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर आपसे कोई बोले लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, पहले आप लिखोगे इसको लाप्लास ऑफ 1 अपॉन टी एफ ऑफ टी अपॉन टी। ठीक है, तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, f1s। तो अगेन ऐसे कंजुगेटिव यू कैन यूज। ठीक है, चलिए, सो द क्वेश्चन आस्क्ड वाज व्हाई दिस s to infinite will come, why this s to infinite will come when we will solve divide by t. so थोड़ा सा जल्दी देख लीजिए, f of s होता है 0 to infinite e raised to minus st f of t dt। ठीक है, सो हमने दोनों तरफ s to infinite इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, सो s to infinite and then e 0 to infinite e raised to minus st f of t dt and ds। अब चेंज ऑफ ऑर्डर हम करेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब हमने सीक्वेंस चेंज कर दी। विद रिस्पेक्ट टू dt की जगह पहले विद रिस्पेक्ट टू ds कर दिया, लिमिट भी चेंज हो गई, 0 टू इन्फाइनाइट टाइम की लिमिट हो गई है ही सही, s टू इन्फाइनाइट s की लिमिट है, जो f ऑफ t है वो इस लिमिट में नहीं आएगा विद रिस्पेक्ट टू ds, सो e रेस टू माइनस st ds और ये dt और ft बाहर। ठीक है, तो 0 टू इन्फाइनाइट ft इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू माइनस st विद रिस्पेक्ट टू ds, e रेस टू माइनस st विद रिस्पेक्ट टू ds कितना होगा, e रेस टू माइनस st अपॉन माइनस t। ठीक है, सो यहाँ आ गया, फिर इसमें अपर लिमिट रखेंगे तो 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट रहेगा तो ये प्लस आ गया, तो इसको हमने लिख दिया ft अपॉन t e रेस टू माइनस st एंड dt। सो दिस इज नथिंग बट लाप्लास ऑफ f of t अपॉन t, दैट इज s टू इन्फाइनाइट f of s ds। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, ओके, so this is enough for today, just write 2 to 3 question। so first question for homework is find the Laplace of t cos at। ठीक है, second one is find the Laplace of t square sin at। okay, and third one is find the Laplace of t e raised to minus 3t, sorry हाँ चलिए, t e raised to minus 3t and sin t। ठीक है, so write down 3 questions, answer me, send me solution on 9005
4194885। ठीक है, चलिए प्लीज राइट इट डाउन एंड सॉल्व इट एज सुन एज पॉसिबल। चलिए, with this we will end our session and tomorrow we will continue with this, and tomorrow we will solve all the questions on this property and we will see some evaluation. Okay, and then some questions and then we will move to inverse Laplace. ठीक है, so please write it down.